جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ اس جنگ احد میں مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان ہوا تھا۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیروں کے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ ان پہاڑوں سے صحابہ لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے۔ فتح سے نیچے اتریں گے ان سیڑھیوں سے تو سب سے پہلے جو یہ مسجد پڑتی ہے یہ والی، یہ ہے سلمان فارسی۔ یہ جو آپ مکان دیکھ رہے ہیں نا پرانے حالات میں، یہ فاطمہ بنت حسین کا مکان ہے۔ حضرت علی کی اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اسی جگہ پر جو اس میں گر گئی تھی۔ اس وقت دائیں طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں طرف عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہلاتا ہے، اس کا پانی جو ہے جنت کا پانی کہلاتا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 300 دور کے درخت جو تھے اپنے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں ہوں مسجد درہ میں اور یہ وہی مسجد ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے نکلے تھے تو مسجد نبوی سے سب سے پہلے آ کے قیام اس میں کیا تھا، اور کچھ جو لوگ تھے نا اکٹھے ہوئے تھے وہ اسی جگہ پر ہوئے تھے، اور یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی پوشاک پہنی تھی۔ اور یہ ابھی دیکھ رہے ہیں نا، بالکل پرانے طریقے کی بنی ہوئی مسجد ہے، جیسے پہلے تھی نا آج بھی اسی حالات میں ہے۔ یہ پورے بالکل کالے پتھروں سے بنی ہوئی مسجد ہے، دیکھیں آپ اسے دیکھیں گے نا اب تو یہ بالکل اسی طرح کی مسجد ہے۔ اور یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے تھے، جنگ احد کے لیے، جو جنگ مسلمانوں کے لیے وہ جنگ مسلمان جو ہے ہار گئے تھے، وہ آگے چل کے بتائیں گے ہم جب احد کے جبل احد پہ پہنچیں گے تب اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ فی الحال یہ مسجد کا آپ دیدار کریے، یہ مسجد درہ ہے۔ تو یہ جو میرے پیچھے سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا، اس پہاڑ کو کہتے ہیں جبل احد۔ جبل احد، یہاں پر جنگ احد ہوئی تھی جب جنگ بدر کے بعد میں، جنگ بدر مسلمانوں نے جیت لی تھی۔ 300 مسلمان تھے اور 11,000 مکے کے 1100 سے 1200 کے آس پاس لگ بھگ مکے کے سرداران بڑی فوج لے کر کے جنگ بدر میں آئے اور ان 300 مسلمانوں نے وہاں پہ فتح حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد میں ہوا یہ کہ یہ کفار مکہ یہ برداشت نہیں کر پائے، اور یہ دوسری جنگ تھی اسلام کی، مسلمانوں کی دوسری جنگ تھی جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ اس جنگ احد میں مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان ہوا تھا۔ ایک بار میں 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، اور ان 70 صحابہ میں سب سے بڑا جو نقصان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ جو آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ ہندا نے ان کا کلیجہ نکال لیا تھا، سنا ہے نا؟ جی جی، وہ واقعہ یہی کا ہے۔ اور میں آگے وہ قبرستان دکھاؤں گا آپ کو جس میں 70 صحابہ کی قبریں ہیں۔ جو آپ سامنے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں پہاڑی پر، یہ جبل روم ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو اپنے کھڑا کیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ لوگ نیچے نہ آئیں۔ لیکن ہوا کیا؟ پہلے جھٹکے میں یہ ہوا کہ مسلمان ایک دم سے غالب آ گئے، کس پہ؟ کفار مکہ پر۔ اور جو اوپر تیر انداز کھڑے تھے ان کو یہ لگنے لگا کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور نیچے وہ مال غنیمت لوٹنے کی مطلب لینے کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ مال غنیمت لے لیا جاتا تھا۔ تو اس مال غنیمت کے لیے سب لوگ پہاڑ سے نیچے آ گئے، اور پیچھے سے پھر کفار مکہ نے ان پہ حملہ کر دیا، اور حملے کے بعد یہ ہوا 70 صحابہ شہید ہوئے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی اسی جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ لوگ اس پہاڑ پہ چڑھے ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ اس پہاڑ پہ چپلوں کے لیے نہیں چڑھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر شہداء کا خون بہا ہے۔ بالکل، جہاں پر شہداء کا خون بہا ہو وہاں پہ ہمیں چپلوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ اب نیچے سے ہم پہاڑ پہ سے دعا کریں گے شہداء کے لیے اور اپنے لیے، اوپر ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں صحابہ کے جو ہے خون کے قطرے گرے ہیں، تو ہمیں ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے چپلوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ میں آپ کو وہ 70 قبریں دکھاتا ہوں جہاں پہ صحابہ شہید ہیں۔ اس کے علاوہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کی قبر بھی میں آپ کو قبر مبارک دکھانے والا ہوں۔ چلیے، یہ وہی پہاڑ ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیروں کے ساتھ کھڑا کیا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں نیچے نہ آئیں، اور غلطی یہ کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور نیچے آ گئے، اور مسلمانوں کو یہ جنگ ہارنی پڑی۔ یہ جو میرے سامنے آپ کو جالی نظر آ رہی ہے، جالی کے اندر جو یہ پورا میدان سا نظر آ رہا ہے نا، یہاں پر جنگ احد کے 70 صحابہ کی قبریں ہیں، اور یہ سب سے بڑی جو قبر نظر آتی ہے یہ والی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عالی جناب امیر حمزہ صاحب کی ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ اور اسی میدان کے اندر 70 صحابہ کی قبریں موجود ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ سامنے مسجد دیکھ رہے ہیں نا، یہ مسجد شہداء کہلاتی ہے۔ یہ پورا یہ گراؤنڈ وہی ہے۔ حضرت طرف سے جو ہم جنگ احد سے آتے ہیں نا، تو جنگ کے بعد میں کیا ہوا تھا کہ مسلمان پوری طریقے سے تتر بتر ہو گئے تھے، اور صحابہ کو لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شاید شہید ہو گئے، کہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ تو کسی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اس طرف آئے ہیں۔ تو یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ والے
इनसे सहाबा लिपट लिपट के रोए थे, इन पहाड़ों से सहाबा लिपट लिपट के रो रहे थे। और यहाँ सब पूरे जो है लगे हुए थे सहाबा। बाद में पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे की तरफ गए थे, तो सहाबा इस तरफ आगे की तरफ चलने लगे। यहाँ भी कुछ लोग इसमें जो है छुपे थे और इन पहाड़ियों से सहाबा लिपट लिपट कर रोए थे। सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे वो इन पहाड़ों से लिपट लिपट के रोने लगे। चलिए आगे चलते हैं, वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहाड़ ने अपने अंदर छुपाया था। और वो मस्जिद भी दिखाऊंगा जिस मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के बाद असर की नमाज इसी जगह पर अदा की थी। ये जो सामने आप मेरी मस्जिद देख रहे हैं ना, ये वाली, ये पुराने हालात में ये मस्जिद बनी हुई है आज भी, और ये वही मस्जिद है। देखो मैं चलो आगे चल के दिखाता हूँ, और हम भी नमाज इसी में पढ़ेंगे। ये पूरा इसके बारे में दिख रही है ना, ये जो दिख रही है पुराने हालात की मस्जिद। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअत नमाज जंग वाले दिन, जिस दिन जंग अहद हुई थी और जंग खत्म हो चुकी थी, तो कुफ़ार मक्का डर गए थे कि शायद पीछे से मदीने वाले लोग आ गए हैं, इसलिए वो वापस लौट गए थे। यहाँ तक पीछा किया था, उसके बाद पीछे को लौट गए थे। तो आपने असर की नमाज यही पढ़ी। ये केवल एक पहचान की तरह है, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह है। ये देखिए, ये इतनी छोटी छोटी दीवारें हैं इसकी, और मेंबर देखेंगे तो मेंबर भी ये बहुत छोटा सा एक मेंबर बना हुआ है। मस्जिद किबला तैन पर, जिसको 2 काबों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, दो किबला वाली, यानी 2 मेंबर वाली मस्जिद भी कहा जाता है। मस्जिद किबला तैन का जो वाक़या है वो कुछ इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पे यहाँ पे मस्जिद किबला तैन बनी हुई है, इस जगह पे एक सहाबा का घर हुआ करता था। तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर आए हुए थे अपने सहाबा से मिलने के लिए। और असर का वक्त हुआ, तो असर के वक्त के टाइम पे आप नमाज अदा कर रहे थे, और तभी अल्लाह की वही आई, और उस टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ को करके नमाज अदा करते थे। उसके पीछे भी एक वजह यह थी कि कुफार मक्का कहते थे कि ए मोहम्मद, तुम दीन तो नया ले आए और किबला हमारा इस्तेमाल करते हो। तो आपने मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज अदा करते थे। और एक दिन क्या होता है कि जब यहाँ आए हुए थे तो उसी वक्त असर का वक्त था, 2 रकअत नमाज आप अदा कर चुके थे। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास वही आती है, और आपको हुक्म होता है कि आप अपना रुख बैतुल्लाह खाना काबा की तरफ कर लीजिए। तो आपने अपना मुसल्ला घुमा लिया और उस तरफ कर लिया। पीछे बैठे सहाबा ने भी अपना रुख उसी तरफ कर लिया, खाना काबा बैतुल्लाह की तरफ। तो अल्लाह के रसूल ने नमाज के बाद उनसे पूछा कि मुझे तो अल्लाह का हुक्म हुआ था, मेरे पास तो वही नाजिल हुई थी, मैंने इसलिए अपना रुख चेंज किया, आप लोगों ने क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम तो आपके पीछे हैं, जिस तरफ आप करेंगे उस तरफ ही हम करेंगे। तो ये वही उसी जगह पे मस्जिद किबलातैन बनाई गई है। इस मस्जिद के अंदर आप चलेंगे ना तो आपको 2 मुसल्ले नजर आएंगे, 2 किबला, एक आएगा आपको मस्जिद अक्सा की तरफ का और दूसरा आएगा आपका खाना काबा बैतुल्लाह की तरफ का। चलिए मस्जिद में चलते हैं अंदर और आपको दीदार कराते हैं। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मौजूदा हाल का हमारा किबला है जो इस तरफ है, और इसके ठीक अगर हम पीछे की अपोजिट तरफ देखते हैं, जिस वजह से मस्जिद किबलातैन को कहा जाता है 2 किबलों वाली मस्जिद। तो ये सामने रहा एक मुसल्ला आपका, और जब हम ठीक जिस एंट्री से हुई है वहाँ हम ऊपर की तरफ देखेंगे। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो एक मुसल्ला वो बना हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? मुसल्ला दिख रहा है ना, ये रहा जी। तो पहले हम इस तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे, और अभी इसका पूरी डायरेक्शन में हम घूमते हैं, तो हमारा आज का किबला इस तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं इस तरफ। और पहले मैं पूरा घूम जाऊंगा, ऊपर की तरफ आप देखेंगे निशानी बनाई गई है, वो जो झूमर के ऊपर वो उस तरफ है। तो ये मस्जिद किबलातैन को इसलिए कहा जाता है 2 किबला वाली मस्जिद। अभी हम पहुंचे हैं जंग खंदक पर, और यहाँ जो ये खंदक, इसका नाम इसलिए रखा गया, खंदक कहते हैं खाई को, जो हम लोग खाई खोद देते हैं ना उसको खंदक कहते हैं। तो ये 5 किलोमीटर खंदक खोदी गई थी, और एक तरफ खंदक थी और दूसरी तरफ क्या था, पहाड़। और ये मुसलमानों की तीसरी जंग थी, जंगे बदर के बाद और जंग अहद के बाद और जंग खंदक। तो जंग खंदक के टाइम पे हुआ ये था कि जिस जगह पर सहाबा के खेमे लगे थे उसी जगह 7 मस्जिदें बना दी गई। जिस जगह अभी हम खड़े हुए हैं मस्जिद से लगभग 150 मीटर दूर पे, यहाँ जाबिर रजी अल्लाह अन्हु का मकान हुआ करता था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबा थे। और वो वाक़या आपने सुना होगा कि जिसमें सहाबा ने कहा था कि हम भूख से बेहाल हैं, और जाबिर रजी अल्लाह ने दावत कर दी थी आपकी
वो जाबिर रजी अल्लाह अन्हु, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने उनकी दावत की थी। तो वो जाबिर रजी अल्लाह अन्हु का मकान ठीक इस जगह था जिस जगह हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर था। वो वाक़या पूरा आपने सुना होगा कि आप बुलाया था कम लोगों आपको अकेले को लेकर ज्यादा लोग आ गए थे, पूरे सहाबा आ गए थे उसमें। तो बाद में वो अल्लाह की तरफ से वो पूरा जो है हो गया था। तो जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर जाबिर रजी अल्लाह अन्हु का मकान बताया जाता है लोकेटिव। ये वही मस्जिद है, असर का वक्त था जिस टाइम ये क्या नाम है खुशखबरी मिली थी कि हम लोगों ने जंग फतह कर ली है। तो सुभान अल्लाह का नाम इसीलिए दिया गया है। इसके बाकी जो मस्जिदें हैं वो अलग है। और रोक दो अभी, पीछे आप देख रहे हैं ना मस्जिद, ये मस्जिद फतह है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह की खुशखबरी इसी मस्जिद में दी गई थी। और असर का वक्त था जिस टाइम ये खबर मिली थी आपको कि हम लोगों ने ये जंग फतह कर ली। पहली मस्जिद इसको सबसे पहले दिखा रहे हैं, ये मस्जिद अल फतह है क्योंकि यहीं से फतह की खुशखबरी मिली थी। चलिए नमाज पढ़ते। मस्जिद बिल्कुल पुराने हाल में है, 1400 साल से ऐसे ही खड़ी हुई मस्जिद है साल से। अब देखिए इसी जगह पे जंग खंदक की फतेह की हम लोगों को खुशखबरी मिली थी। ये जो सबसे पहले जब आप मस्जिद फतह से नीचे उतरेंगे इन सीढ़ियों से, तो सबसे पहले जो ये मस्जिद पड़ती है ये वाली, ये है सलमान फारसी की। और वो जो मैदान में जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं दिखाता हूँ जूम करके, यही है। बाकी खेमे यहाँ थे। जो अभी ये जो रिपेयर हो रहा है ना, ये उमर बिन खत्ताब का था और इस तरफ अबू बकर का था और इसमें 2 खेमे और थे। और जो आप वाइट वाली मस्जिद नज़र आ रही है ये वाली, इस मस्जिद के ठीक पीछे एक छोटी सी मस्जिद नज़र आ रही है, वहाँ जनाब हजरत अली का खेमा था। और इसके पीछे एक पेड़ जो नज़र आता है छोटा सा, यहाँ पर बीबी फातिमा का खेमा था। तो ये जंगे खंदक में जहाँ खेमे लगे थे और ये जंग मुसलमान। और जो इस तरफ आप देखेंगे ना मेरी उंगली की तरफ, ये पूरा जो मैदान है इसके चारों तरफ से जो है एक खाई लगा दी गई थी 5 किलो। और एक तरफ खंदक थी, खाई थी, और दूसरी तरफ पहाड़ था। 2 बाकी 2 मौजूजे भी यहाँ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। एक मौजूजा ये है कि एक पत्थर आ गया था जो किसी से नहीं टूट रहा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया और आपने उसमें कुल्हाड़ मारी थी और एक में ही टूट गया था। कुंटलों का पत्थर था। एक मौजूदा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो यहाँ ये था। और दूसरा ये था कि जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर जब खाने की बात आई थी, साहबा ने कहा कि हम कई दिन से भूखे हैं नबी, तो हमें भूख लगी है। तो जब खाने की व्यवस्था तो आपने भी दिखाया था कि मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हैं। उसके बाद जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि आप मेरे घर चलिए और मेरे यहाँ चल के आप खाना खा लीजिए। तो आपने खाने की व्यवस्था कराई थी, एक खाली पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और जितने लगभग 100 से 200 लोग उसमें खाने के लिए पहुंच गए थे। तो जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत परेशान थे इस बात को लेकर के कि क्या होगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि आप परेशान ना हो, और वो 200 से 300 लोगों के लिए खाना पूरा हो गया था, जो कि 3 या 4 लोगों के लिए बना था। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद नहीं है, तो ये मौजूद हैं उनको दिखते नहीं हैं क्योंकि वो जो हैं दूसरी नस्ल वाले हो गए हैं। आप मकान देख रहे हैं पुराने हालात में, मेरा चेहरा दिखाइए। ये जो आप मकान देख रहे हैं ना पुराने हालात में, ये फातिमा बिनते हुसैन का मकान है। बिनते हुसैन का मतलब हुसैन की बेटी का मकान है। और इसमें एक कुआं हुआ करता है, अभी भी कुआं है वो, जो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन के हाथों से खोदा गया। उन्होंने अपनी बेटी के जब वो यहाँ पर खोदा जा रहा था तो उन्होंने भी इसमें मदद की थी। तो ये जो सामने देखना है ये उस टाइम का कमरा था, ये कमरा था और एक और कमरा है। इसके आगे आप उस तरफ देखेंगे तो आंगन है, उस तरफ देखेंगे तो आंगन है, और एक छोटी सा और स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देता है जो उस ज़माने का बैठक थी जिसमें हम लोग मेहमानों को रोकते हैं, क्योंकि रिहाइश से मेहमानों के जाने की जगह अलग थी। वो उस तरफ से दिखाऊंगा मैं आपको। ये फिलहाल देखिए ये कमरे हैं, 2 कमरे हैं ये, और आगे आंगन है और इसके आगे एक कुआं है। चलिए आगे मैं कुआं दिखाता हूँ। ये सामने नजर आ रहा है ना, ये बैठक थी, बैठक कह दीजिए आज की। और इसके आगे की तरफ देखेंगे तो एक कुआं है जो अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस कुएं के बारे में ये बताया जाता है कि इस कुएं को जो खोदा गया था हाथ से, तो इमाम हुसैन ने मदद की। जी हाजी हुसैन ने अपने हाथों से कुएं में मदद की है खुदवाने में। और ये हुसैन की बेटी का घर है पूरा। अभी इसको चारों से बाउंड्री में कर दिया गया है, लेकिन मकान पूरे हालात में है। एक बार घूम लीजिए, चलो चलते चलें हजरत। तो ज़ियारतों के सिलसिले शुरू कर दिया। ज़ियारतों के सिलसिले में अब हम पहुँचे हैं मस्जिद जुमा। तो मस्जिद जुमा जहाँ पे ये बनी हुई है, इसकी 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि मस्जिद जुमा में सबसे पहले मदीने के अंदर जुमा हुआ। दूसरी बात यह है
कि जब कूफा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 या 3 दिन का स्टे करने के बाद में, रुकने के बाद में जब इस तरफ आए तो यहाँ अफ़ान कबीला, शायद नाम भूल रहा हूँ, अफ़ान कबीला रहता था। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल तुम वहाँ पर तो रुके हो 3-4 दिन, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं रुकोगे, तो आपने यहाँ पर भी क़याम किया। तीसरी बात यह है कि मदीने के अंदर हज़रत अली की और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इसी जगह पर हुई थी, सुभान अल्लाह। इसी जगह पर हुई थी, इसीलिए इस पर मस्जिद बनाई गई और इस मस्जिद को मस्जिद जुमा का नाम दिया गया। तो अभी हम पहुँचे हैं मस्जिद कूबा। मस्जिद कूबा आलम इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क़याम, ये सामने पीछे बाग नज़र आ रहा है, उस तरफ आकर के किया था। रात को आप बाहर रुके थे, सुबह यहाँ आए थे। यहाँ कुलसुम बिन हमाद जो हमारे सहाबा थे उनका मकान था इस गुंबद के नीचे, तो आपने वहाँ स्टे किया था इस गुंबद के नीचे और यहाँ पे मकान था। और इस तरफ आप देखेंगे जो जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं ना हजरत, यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था, यहाँ दूसरा मकान था। तो दो सहाबा थे, दोनों में जिद्दो बहस हुई कि आप मेरे यहाँ रुकेंगे या मेरे रुकेंगे। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जो है वहाँ रुकते थे और दिन में जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं इस पेड़ के नीचे आ जाया करते थे। यहाँ पर एक कुआं भी है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो कुआं में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हाथ की अंगूठी होती है ना, मोहर मुबारक कहते हैं जिसको, उस ज़माने में लोग मोहर हाथ में रखा करते थे अंगूठी में, वो भी उस कुएं में गिर गई है। वो कुआं भी अभी दिखाते हैं। तो ये आलम इस्लाम की पहली मस्जिद है, पूरे आलम इस्लाम की पहली मस्जिद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर चला तब की ये पहली मस्जिद है। और इस मस्जिद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब कूबा के लोग मक्के को जाते थे उम्रा करने के लिए, तो मक्के के लोग यहाँ कूबा मदीने के लोगों को परेशान किया करते थे। तो कूबा के लोगों ने, मदीने के लोगों ने अल्लाह के रसूल से फरमाया कि अल्लाह के रसूल जब हम उम्रा करने के लिए जाते हैं तो मक्के के लोग हमें परेशान करते हैं, तो क्या करें हम। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप जो भी आदमी या जो भी इंसान मस्जिद कूबा में 2 रकअत नफिल नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसको एक उम्रे का सवाब देगा। तो आज हमें मौका मिला है, आज हम आए हैं, चलिए चलते हैं और नमाज पढ़ते हैं। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक गिरी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को एक अंगूठी जो है तोहफे के तौर पे दी थी, जो इसमें गिर गई थी। उस वक्त दाईं तरफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए थे और बाईं तरफ उमर बिन खत्ताब बैठे हुए थे। उस वक्त इस कुएं में वो अंगूठी गिर गई थी, जिसको मोहर कहा जाता था। और ये उस ज़माने का एक कुआं है जिस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी है। सुभान अल्लाह। मस्जिद कूबा का बाहर का कुछ इस तरह से नज़र आती है। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। पहले यहाँ ये छतरी नहीं हुआ करती थी, अभी छतरी लगा दी गई है कूबा के अंदर भी, और काफ़ी खूबसूरत बना दी गई है पहले से। और इसका एंट्रेंस है, यहाँ से जाएंगे, 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे और अल्लाह में भी एक उम्रे का सवाब। अभी हम पहुँचे हैं गारे वैल पर, यानी जन्नत के कुएँ पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि इस पानी को, इस कुएं को जन्नत का पानी करार दिया है। ये कुआं अपने पुराने हालात में है, आज तक है, और इस कुएं के पानी को जन्नत का पानी कहा गया है, पैराडाइज ऑफ वेल, अंग्रेजी में कहें तो पैराडाइज ऑफ वेल। ये जन्नत का कुआं कहलाता है, इसका पानी जो है जन्नत का पानी कहलाता है। और एक इसके साथ और जुड़ा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद जब मैं दुनिया से रुखसत हूँ तो मुझे इसी पानी से गुस्ल दिया जाए। तो आज हम आए हैं गारे वैल पर, जन्नत के कुएं पर। चलिए इसका पानी पीते हैं और चलते हैं आगे। अल्लाह। ये अंदर का स्ट्रक्चर है इसके, गारे वैल के पीछे को आप जब आएंगे नज़र आता है, ये इसका नज़र आता है। इसी जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने क़याम किया और ये पूरा एक जगह बनी हुई है, मिंबर बना हुआ है। ये देखिए, ये पुराना इस तरह का है। उस बाग में, जिस बाग को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लगाया था, ये 300 पेड़ लगाए थे सलमान फ़ारसी की रिहाई के लिए। जब सलमान फ़ारसी जो एक सहाबा थे और वो गुलाम थे किसके, एक यहूदी के, तो उसकी रिहाई के बदले में उसने 300 खजूर के पेड़ों के लिए अपनी डिमांड रखी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 300 खजूर के दरख्त जो थे अपने हाथ से लगाए थे। आधे रोड के उस तरफ हैं क्योंकि बीच में रोड पड़ गया है, और आधे ये इस तरफ हैं। तो ये सलमान फ़ारसी का बाग कहलाता है। और इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इसकी गुठलियों को लगाया था, और तब से लेके 1400 साल हो गए। ये बाग आज भी मौजूद है
अभी हम इस बाग में जाएंगे, यहाँ से खजूरें खरीदेंगे और यहीं क्या है आपका गारे फकी आखिरी हमारा कुआं रह गया है, वो दिखाना है। उसके बाद वीडियो का इख्तिताम होता है, यहीं अंत हो जाएगा। क्योंकि रात हो गई हमें अपना पूरा करते करते, तो इस तरह ये देखिए, और सामने वो जो है दुकान लगा दी गई है यहीं की खजूरों की। कुछ खजूरें भी खरीदनी है और हमारे साथ के जो अंदर जाते रहे गर्मी उसमें अंधेरे में भी नहीं रुक रहे हैं, ज्यादा अंदर ना जाएं, वापस आ जाएं, वापस भी चलना है। जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये वीर फकी है। ये वही कुआं है जिसको उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया था ख़रीद करके। इसका वाक़या कुछ इस तरह है कि जब यहाँ पर मदीने में मुसलमान आकर रहने लगे तो सहाबा इकराम यहीं रहते थे, इस कुएं से पानी ख़रीदते थे क्योंकि यहाँ कोई कुआं नहीं था। अब इसके बदले में एक यहूदी का कुआं था, बहुत मोटी रकम मुसलमानों से ये वसूला करता था। तब एक दिन प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि कोई ऐसा शख्स है जो ये कुआं लेकर के मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दे। तब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने इस कुएं की पूरी रकम यहूदी को अदा करके ये कुआं मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया और इसी कुएं का पानी यहाँ आसपास के जो मुसलमान थे और जो सहाबा थे वो पिया करते थे। अभी फ़िलहाल इसका गेट बंद कर दिया है, तो जितना हो सकेगा हम बाहर से आपको दिखाते हैं, अंदर से नहीं दिखाएंगे। आप इस कुएं को देखते रहिए और वीर फ़की। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। कोशिश करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो आपको। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आप इस खूबसूरत कुएं के गेट का और कुएं का नज़ारा करते रहिए। चलिए मिलते हैं, खुदा हाफिज़, बाय।